प्लांट है. So wind power plant first wind energy मतलब क्या है? So वो wind energy कैसे electrical energy को convert हो रहा है और इसका classification क्या है और बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? वो विंड टर्बाइन विंड पावर जनरेशन सिस्टम का टोटल क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साइट सिलेक्शंस एंड प्रेजेंट सिनेरियो. सो अभी इंडिया से क्या क्या विंड पावर प्लांट होगा, कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे हम देखेंगे. तो फर्स्ट वन, so wind energy. What is wind energy? How the wind energy produces? With the help of air. With the help of air. Yes. Air wind दोनों सेम है ना. So ओके वो air मतलब वो air flowing हम बोल रहे हैं ना. The flow of air wind हम बोलेंगे. Flow of air, movement of air wind बोलेंगे है ना. वो movement कैसे हो रहा है? वो movement क्यों produce हो रहा है? So ये देखो इसमें wind is simply defined as a moving of air. Moving air के लिए हम wind बोलेंगे है ना. So sun rays आ रहा है. So पूरा world earth को sun rays आ रहा है. तो one places heat get more heat, one places gets some heat. So the area of the land area of the earth getting heated unevenly. Unevenly मतलब equal heat नहीं मिल रहा है. One area के लिए ज्यादा heat मिल रहा है, one area को कम heat मिल रहा है. So ये heat difference मिल रहा है ना. one area को different heat मिल रहा है. So one area heat मिल रहा है तो वो heat क्या करेगा? Land का heat वो air को heat करेगा. Land heats up the air around the land. So one area का land pressure, air pressure will be more. One area land pressure will be less. So one area. So अभी ये सोचो नॉर्मल लैंड है, सी है. सो सी के एरिया में वाटर में वो एयर क्या हो जाएगा? कम हीट हो जाएगा. लैंड नियर बाय एयर क्या हो जाएगा? बहुत हीट हो जाएगा. सो हीटेड एयर क्या करेगा? सी हीटेड एयर विल गो अपवर्ड्स. Heated air will go upwards. So when it is moving upward, the sea area air will come through the land. Sea area air will come to the land. Again, that air will get heated up and it will move up to upwards. ये देखो डायग्राम देखो, इसमें तुमको पता चलेगा. So ये लैंड है. लैंड एरिया में एयर हीट हो रहा है और सी एरिया हो तो वो एयर क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर, कूल एयर हो जाएगा. सो ये एयर हीट होता है, ये अपवर्ड्स जाना है तो ये एयर क्या करेगा? अभी इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है. सो हाई प्रेशर एयर क्या करेगा? इधर आएगा. सो अगेन ये ऊपर होने के बाद अगेन इसको एयर क्या हो जाएगा? When it is moving upward, the level of heat decreases. So when heat decreases, that will move towards here. Again this became getting cool, again it will come here. So the movement of air will continuously move. It will be on a recycling. The heating air will be like a cycling. High pressure air will move towards the low pressure air. Low pressure air will move upwards and again it will cool down. When it is flowing here, it will cool down. Again it is coming down. Then it is going to land. So it is like a cycling of moving of air. So ये है वो air production. ये wind moving का कारण है. Wind production air moving का कारण है. सही ना? The area where less heat released will have the pressure increased. When the heat air released, air warms up and the gas pressure decreases. When more heat released, air get warms up, heated up, and the gas pressure decreases. So it move upwards. When it is cool air, it drops down. Hot air moves upward. Cool air will come downwards. So we are having upward moving, and it is getting cool enough, and downwards again moving here,
heated up, moving up. So ये continuous cycle में हो रहा है हम. ये है air का air energy. Normally air wind energy, wind generator. Normally wind energy है. So electrical energy नहीं है, सिर्फ wind energy है वो. So अभी वो wind energy हो, moving of wind से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? वो एनर्जी का कन्वर्शन क्या है? विंड है, विंड काइनेटिक एनर्जी है. ये मूविंग ऑफ एयर है ना, मूविंग ऑफ एयर हो तो काइनेटिक एनर्जी है. और ये मूविंग ऑफ एयर टरबाइन से आ रहा है, विंड टरबाइन ब्लेड को आ रहा है. वो टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो रहा है. और ये मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन शाफ्ट कनेक्टेड टू जनरेटर रोटर. सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Kinetic energy and converts into mechanical energy, and mechanical energy converts into electrical. Okay. Yes, ma'am. So classification of ये wind WPP मतलब wind power plant. Classification of wind power plant. तो कैसे classify करेंगे? मतलब based on turbine system. So how based on turbine they are classified? मतलब one type is horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbine. So in some area, some book में तुम देखेंगे तो HAWT, VAWT दे लिखेंगे. So HAWT मतलब horizontal axis wind turbine, VAWT मतलब vertical axis wind turbine. और ये vertical axis में we are having this types, three alert again. ये vertical axis again divided into three types. The basic most of the use in worldwide commercial use मतलब maximum electricity production due to the horizontal axis wind turbine, not by the vertical axis. Vertical axis first they were started with the vertical axis. First one they have started with the vertical axis. But horizontal axis wind turbine are more useful and it produces more electricity than vertical axis wind turbine. Okay, right. Abhi horizontal axis wind turbine, vertical axis wind turbine, and based on the system, how the system works. The system is divided into greater geared wind power plant. Naito greater wind power plant, maximum geared wind plant, normally available wind power plant बोलेंगे, and direct drive wind power plant. Direct drive मतलब only one area को, अभी एक इंडस्ट्री हो तो सिंपली उनके लिए वो है, दूसरा सप्लाई नहीं करेगा. सपोज वो हिल स्टेशन में वो इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी का पॉसिबिलिटी नहीं हो तो वो क्या करेगा? वो एरिया को पर्टिकुलर एरिया के लिए सप्लाई के लिए वो यूज करेगा वो पावर प्लांट. सिर्फ वो पावर सप्लाई वो पर्टिकुलर एरिया को दे देगा, वो डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट. एंड हाइब्रिड विंड पावर प्लांट. हाइब्रिड विंड पावर प्लांट मतलब क्या? हाइब्रिड मतलब more than two or more than two. हाइब्रिड ओनली विंड नहीं, उसमें सोलर एनर्जी भी कनेक्टेड हो सकता, नहीं हो तो कुछ ना डीजल पावर प्लांट भी ऐड हो सकता. एक सप्लाई जनरेटिंग सप्लाई डिमांड पूरा करने के लिए ओनली ये विंड टर्बाइन का कैपेसिटी काफी नहीं हो तो क्या करेगा? उसको पैरेलल में सोलर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट ऐसे कुछ ऐड किया तो हम टोटल कैपेसिटी मीट कर सकते. सो वो क्या करेगा? उनका नाम क्या बोलेगा? हाइब्रिड विंड पावर प्लांट बोलेगा, हाइब्रिड विंड पावर प्लांट. And the next one based on site. So वो कहाँ, वो विंड पावर प्लांट कहाँ है, वो एरिया को कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो लैंड बेस्ड विंड पावर प्लांट, शैलो वाटर विंड पावर प्लांट एंड डीप वाटर विंड पावर प्लांट. लैंड में होगा. वॉइस नहीं आ रहा है? इमेज मैम, इमेज पिक्चर जो इमेज नहीं है. यस मैम, ठीक नहीं आ रहा मैम, जूम हो गया है मैम. वो सही तो है, आ रहा है मैम, आ रहा है. राहुल तुम्हारा मोबाइल छोटा है इसलिए नहीं आ रहा है. मोबाइल से. ओके, एक मिनट में सेकेंड टाइम शेयर कर रहा हूँ. 1 मिनट. मैम अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छे से आ रहा है. ओके देन राहुल तुमको अभी ठीक है मैम, दिक्कत होती है. अभी ठीक है मैम. ओके मैम
जब से क्या हो गया था? So land based wind power plant, wind or deep water wind power plant. So 3 types of wind plant based on the site. Okay, based on site. So next one ये देखो, ये क्लासिफिकेशन में अभी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों बोला है ना, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन. सो एक्सिस मतलब हम जानते हो ना, एक्सिस टरबाइन को एक्सिस. सो इसमें ये है टरबाइन है, ये टरबाइन का एक्सिस मतलब क्या बोलेंगे, ये है ना, टरबाइन का एक्सिस कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा है ना, टरबाइन का एक्सिस ऐसे हो जाएगा, और ये वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल में टरबाइन इधर है, सो टरबाइन का एक्सिस कैसे हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा. सो इस ये देखेंगे तो वो एक्सिस कैसे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है. सो ये हम क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन और ये एक्सिस वर्टिकल में है और इसका नाम है वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है. ओके, सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस टरबाइन. सो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये टरबाइन का ब्लेड्स है, और ये टरबाइन शाफ्ट, जनरेटर शाफ्ट, और ये टावर और ये बेस है, और ये पूरा सिस्टम है ना, ये कवर, ये जनरेटर है, अंदर टरबाइन है, ये कंट्रोल सिस्टम है, कंबाइंड, ये क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड, इसका नाम है नासल, इसका क्लोज्ड पार्ट, ये क्लोज्ड, ये टोटल सिस्टम, ये इनका नाम है नासल. और ये है टावर का शाफ्ट एक्सिस, टरबाइन का शाफ्ट एक्सिस, और ये है इसका ब्लेड, पिच ब्लेड हम बोलेंगे, और ये जनरेटर, गियर बॉक्स सभी इसमें, और ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का. ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों का टाइप्स है. सो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये तीनों वर्टिकल एक्सिस का. वर्टिकल एक्सिस में हम 3 टाइप्स हम बोला है ना, सैवोनिस, डेरियस एंड हेच रोटर टाइप है. सो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का और ये 3 वर्टिकल एक्सिस का. सो ये दिस टाइप ये ईयरली पहले दिन से स्टार्टिंग समय में ये यूज किया नॉर्मली वर्टिकल टाइप के लिए. और ये टाइप, दिस टाइप एंड दिस टाइप भी नॉर्मली सी कहाँ से देख सकते, तो कुछ बिल्डिंग का ऊपर, बिल्डिंग में इंटरनली बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग का ऊपर यानी 1 or 2 सिस्टम के लिए वो मिनिमम पावर प्रोडक्शन के लिए वो यूज करेंगे, तो ये टाइप और दिस टाइप wind power plant they are using. Now at all we can see some modern cities में वो बिल्डिंग हाई बिल्डिंग का ऊपर हाइट में ये और ये द टाइप ऑफ turbines we are using, and they are making wind energy into electrical energy. Okay, next one, ये earlier फर्स्ट नॉर्मल स्टार्टिंग सिस्टम में वो यूज किया, और ये वर्टिकल टाइप विंड पावर प्लांट, वर्टिकल टाइप टरबाइन का एग्जांपल्स है. ऐसा था, ये माउंटेन्स में, और इसको स्पेस भी कुछ ज्यादा चाहिए, और इसको पोजीशन मेंटेनिंग भी कुछ ज्यादा केयर होना चाहिए. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टरबाइन कंपेयरिंग हॉरिजॉन्टल, ये टाइप वर्टिकल टाइप, ये दिस टाइप ऑफ टरबाइन के लिए वो बहुत मेहनत से केयर करना चाहिए हम. एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल. एडवांटेज क्या मतलब, ग्राउंड लेवल, सो इसका ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, वो ग्राउंड लेवल में हम फिक्स कर सकते, जनरेटर ये सब ऊपर नहीं होना, ऊपर करने का जरूरत नहीं है. एंड the motor control mechanisms and everything will be downwards, so problem rectification can be easy, and designing be easy. Disadvantage मतलब ज्यादा capacity, it cannot produce more capacity. So क्यों मतलब वो wind, whenever we are moving height, the wind flow easily. When we are going lower, wind flow easy नहीं है. So height कम, ground level का पास है तो वो capacity will be lesser.
and the efficiency will be less. Horizontal axis turbine का efficiency ज़्यादा है, vertical axis turbine का efficiency बहुत कम है. And इसको structural comparison, vertical horizontal axis को structural comparison अच्छा है, vertical axis को structural comparison कुछ कम है. Okay. और ये horizontal axis का turbine है. So horizontal axis ये वाला turbine हम जानती हो ना, ये पुराना वाला इंग्लिश पिक्चर्स में हम देखेंगे तो ऐसे वाला टर्बाइन्स बहुत ज्यादा यूज किया. हाँ है ना. वो क्या करेगा, ये टर्बाइन, ये ब्लेड्स है और ये जनरेट करेगा और इसके लिए वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा टाइम, स्टार्टिंग में पंपिंग सिस्टम, वाटर पंपिंग के लिए, एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इंडिविजुअल होम इलेक्ट्रिसिटी के लिए. सर ये विंड कैसे क्या करेगा, ओनली इट विल सप्लाई फॉर द पर्टिकुलर वन होम या 2 होम्स के लिए. तो पर्टिकुलर पर्सनल यूज के लिए वो यूज किया और ये भी इसके बाद ये डेवलप किया और अभी ये वाला विंड पावर प्लांट. स्टार्टिंग में ये था और फिर ये, और दिस नाउ वी आर मोस्ट प्रोबेबली वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में क्या क्या होगा, वो जनरेटर, टर्बाइन ये सभी ऊपर है, है इधर. सो हाइट ज्यादा हो रहा है तो हमको विंड प्रेशर भी ज्यादा मिल जाएगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा. सो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन को. सो इसका ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगा. ये स्टार्टिंग करने के लिए कोई मटेरियल नहीं चाहिए. सो विंड फ्लो हो रहा है तो नॉर्मली ये ब्लेड रन हो जाएगा, स्टार्ट रोटेट हो जाएगा. इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, मेंटेनेंस दैट मींस एफिशिएंसी ज्यादा है और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन भी इजी है. सो लेस एक्सपेंसिव है and developed easy technology developed can be easily implemented here. Technology development easily implemented and a high capacity of energy can be produced in horizontal axis. So economical wise it is a commercial use wind turbine. Horizontal axis wind turbine commercial use for electricity production, commercial use only for only one home के लिए, 2 homes के लिए नहीं. It produces high capacity. Okay. And the disadvantages. So disadvantages मतलब क्या, इसको main disadvantages है इसका जनरेटर, टर्बाइन शाफ्ट, गियर बॉक्स, कंट्रोल सिस्टम सब इसका ऊपर शाफ्ट में है. वो नासल हम बोला है ना, वो नासल का अंदर है सभी पार्ट. इंपॉर्टेंट फीचर्स, जनरेटर्स, कंट्रोल सिस्टम्स, एवरीथिंग ऊपर है. सो सपोज एक जनरेटर को कुछ फॉल्ट है, वो गियर सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो तो वो फॉल्ट अटेंडिंग के लिए हम इतना मेहनत करने के बाद ऊपर जाना चाहिए और इस वो फॉल्ट अटेंडिंग इजी नहीं है. एंड वन मोर थिंग, इसको ये विंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो इसका रोटेशन, इसका मूवमेंट भी टर्बाइन फेज नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हब का फेस ये भी हम रोटेट करना चाहिए, वो कंट्रोल करना चाहिए. वो ये कैसे कंट्रोल करेंगे सभी इसके बाद बोल रहे हैं. ओके. और हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल दोनों का डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. सो हॉरिजॉन्टल में मेजर कंपोनेंट्स आर इन हाइट एंड ये सब मेजर कंपोनेंट्स ग्राउंड लेवल में है. ये स्पीड, रोटेटिंग स्पीड हाई है, इसका रोटेटिंग स्पीड लो है और मेंटेनेंस ज्यादा है, इसका मेंटेनेंस लो है. केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम. सो केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम क्यों, मतलब वो इतना टावर ज्यादा है और वो ऊपर से वो केबल, कनेक्टिंग केबल ऊपर से नीचे हम देना चाहिए और इसको केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है. लाइफ स्पैन कम है, इसका लाइफ स्पैन लॉन्ग है. Installation cost high, installation cost low. It run on high wind speed and it can run only on low speed. High speed को ये rotate हो नहीं सकता और इसका power high power output और इसका low power output
एंड स्टार्टिंग टार्क लेस, मिनिमम विंड फ्लो हो रहा है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, बट इसके लिए हाई टार्क, स्टार्टिंग टार्क हाई चाहिए। और रोटेशन इन पैरेलल टू द विंड, रोटेशन कैन बी पैरेलल, कोई भी डायरेक्शन में विंड फ्लो हो तो ये चेंज हो जाएगा, बट इसको डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। और ये है दोनों का डिफरेंस है। और टाइप्स ऑफ विंड पावर प्लांट में ये लैंड बेस्ड, सी ऑफ लैंड बेस्ड, डीप वाटर बेस्ड, शैलो वाटर बेस्ड हम बोला है ना। और ये है लैंड बेस्ड, सही, ये डायग्राम ऐसे ही हो तो ये लैंड बेस्ड विंड पावर प्लांट है। और ये वाटर्स ऑफशोर, ऑफशोर मतलब सी लेवल में ये है। और ये कम्युनिटी मतलब तो बहुत ज्यादा एरिया को वो सप्लाई दे देगा, तो ये कम्युनिटी मतलब क्या बोलेगा, ये डायरेक्ट ड्राइन है। हाइब्रिड टाइप नहीं तो गियर सिस्टम एचपीपी हम बोला है ना, ये है ये। और ये रेसिडेंशियल हो तो ओनली इसके लिए ये है डायरेक्ट ड्राइव है, ये डायरेक्ट ड्राइव हाइड्रो पावर, सॉरी डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट है ये देखो ये लैंड बेस्ड, ये है लैंड बेस्ड विंड पावर प्लांट है ये। और ये दोनों लैंड बेस्ड विंड पावर प्लांट। और ये शैलो वाटर, शैलो वाटर मतलब वाटर लेवल कम है, ओनली अप टू 10 meters हाइट, वाटर लेवल विल बी अप मैक्सिमम ऑफ 10 meter हाइट, ऐसे हो तो ये शैलो वाटर। और ये डीप वाटर, डीप वाटर ये डिस्टेंस अराउंड 50 meters भी हो सकता, 50 meters भी। सो इसमें फाइल फाउंडेशन है, इसका फाइल फाउंडेशन है। और इसमें फाइल फाउंडेशन डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं है, फाइल फाउंडेशन इधर है, इसी से ये का फ्लोट हो जाएगा, हेवी फ्लोट, वो फ्लोट से ये कनेक्ट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन विल बी ऑन द फ्लोट ऑफ द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, इसमें लिखा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है इसमें, वो प्लेटफॉर्म का ऊपर है ये। और इसको वो ऑब्स्टेकल व्हेन कंपेयरिंग टू लैंड, ये सी में ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं होगा। सो डैम बहुत ज्यादा विंड इसमें फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसी से ले सकते। और ये लैंड, ये दोनों लैंड बेस्ड है। और ये शैलो वाटर और ये डीप वाटर विंड टर्बाइन है। And important components of the wind power plant, components of wind power plant, ये देखो ये डायग्राम में ये है ब्लेड्स, ब्लेड टर्बाइन का ब्लेड है। और ये दोनों है ना, ये क्या बोलेगा, हब, टर्बाइन हब, टर्बाइन फेस इलेना हब फेस, नहीं तो रोटर शाफ्ट, जनरेटर का रोटर शाफ्ट, टर्बाइन रोटर नहीं तो टर्बाइन शाफ्ट हम बोलेंगे। और ये नेक्स्ट वन ये देखो ये ब्लेड है ना, 3 लिखा है ना, नंबर 3, ये ब्लेड, ये ब्लेड रोटेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू विंड डायरेक्शन, ये ब्लेड कैन बी रोटेट। एक मिनट, सो अभी एक हब है, ऐसा हब है। सो हब में 1 2 3 ब्लेड्स हो तो ब्लेड ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ये रोटेट हो जाएगा ना, ये रोटेशन, ये टोटल टर्बाइन का रोटेशन हम बोलेंगे। ये हो तो ये ब्लेड कैन बी रोटेट लाइक दिस, ये ब्लेड का पोजीशन कैन बी रोटेट लाइक दिस। सो ये क्या बोलेगा, पिच बोलेगा, ब्लेड पिच। सो ये कैन बी दिस अकॉर्डिंग टू द विंड फ्लो, amount of wind flow, नहीं तो orientation of wind flow, this can be, blade can be rotate like this. So blade यही से रोटेट हो जाएगा और यही से भी रोटेट हो जाएगा, फिर यही से रोटेट हो जाएगा, फिर रोटेट भी हो जाएगा। So ये क्या बोलेगा हम, ये कंट्रोल, और ये ब्लेड का रोटेशन कंट्रोल, ये शाफ्ट हब है। सो इसके 1 2 3 ब्लेड, 2 ब्लेड या 3 ब्लेड भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं। बट वो ब्लेड क्या हो जाएगा, ये ब्लेड इंडिविजुअली कैन बी रोटेट, ब्लेड इंडिविजुअली कैन बी रोटेट।
ओके सो इसमें नेक्स्ट देखो, ये ब्लेड, ये शिफ्ट, ये रोटेशन का डायरेक्शन देखो, ये इंडिविजुअल ब्लेड कैन बी रोटेट, इंडिविजुअल ब्लेड कैन बी रोटेट, और ये टोटल कैन बी रोटेट, ये टोटली ये रोटेट हो जाएगा और इंडिविजुअल ब्लेड कैन बी रोटेट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज ब्रेक, ये फोर्थ नंबर देखो, ये फोर्थ नंबर क्या बोलेगा, हम ब्रेक बोलेगा। वो ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक हो सकता है, न्यूमेटिक ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकता है, कोई भी, बट वो ब्रेक डिस्क ब्रेक लाइक वो ब्रेक हो तो वो रोटेशन है ना, ये रोटेशन को वो बंद करेगा। ये शाफ्ट बंद हुआ तो, ये ब्रेक हुआ तो, इवन दो विंड फ्लो हो जाएगा तो ये टर्बाइन क्या वो रोटेट नहीं होगा। ये रोटर को, ये टर्बाइन शाफ्ट को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक अप्लाई किया तो ये शाफ्ट रोटेट नहीं होगा। सो इवन का विंड ज्यादा फोर्स में मिल रहा है तो ये फोर्स में रोटेशन नहीं होगा। ओके नेक्स्ट वन इज, और ये ऊपर देखो, ये है लोअर स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट। नॉर्मली विंड फ्लो हो रहा है तो ऐसे, ये विंड फ्लो हो रहा है तो ये टर्बाइन ब्लेड को अटैक करेगा और ये मूव हो जाएगा। ये कितना स्पीड में अराउंड हो तो मैक्सिमम 50 राउंड्स पर मिनट, 1 मिनट के लिए 50 राउंड आरपीएम, 50 आरपीएम या 30 आरपीएम, 40 आरपीएम, कोई भी हो सकता है। ये आरपीएम बहुत कम, नॉर्मली 50 आरपीएम, 40 आरपीएम, 60 हो तो कम है ना। नॉर्मली हमारा जनरेटर का आरपीएम कैसे हो सकता है, हमको 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम है जनरेटर रोटर का, बट ओनली वी आर गेटिंग ओनली 50, 40, 30 आरपीएम में। सो ये हम क्या बोलेंगे, लो स्पीड रोटर शाफ्ट बोलेंगे। और ये लो स्पीड रोटर शाफ्ट कनेक्टेड विथ गियर, ये गियर्ड सिस्टम में। सो ये गियर्ड सिस्टम क्या करेगा, लो स्पीड टू हाई स्पीड को कन्वर्ट करेगा, लो स्पीड टू हाई स्पीड को कन्वर्ट करेगा। सो ये लो स्पीड टू हाई स्पीड को कन्वर्ट किया तो ये नीचे देखो, नीचे ये एक शाफ्ट है ना, ये जनरेटर से कनेक्टेड एक शाफ्ट है ना, इधर ये 12 नंबर है, और ये शाफ्ट हम क्या बोलेंगे, हाई स्पीड शाफ्ट, और ये लो स्पीड शाफ्ट, और ये गियर बॉक्स है, गियर सिस्टम में, ये गियर सिस्टम कन्वर्ट्स लो स्पीड इनटू हाई स्पीड फॉर द रोटर ऑफ द जनरेटर। क्यों से रोटर, जनरेटर रोटर के लिए हमको मोर देन 1500 को आरपीएम चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मोर देन 1500 आरपीएम चाहिए, बट अवेलेबल आरपीएम क्या है, सिर्फ 40 या 30, 40, 60 आरपीएम है। सो हाई आरपीएम चाहिए हमको। सो ये गियर सिस्टम क्या करेगा, वो लो स्पीड आरपीएम को हाई स्पीड आरपीएम को कन्वर्ट करेगा गियर सिस्टम में। और ये 12 नंबर है, हम क्या बोलेंगे, हाई स्पीड शाफ्ट। और 7 नंबर है जनरेटर, 7 नंबर जनरेटर, और 8 नंबर है कंट्रोलर, 8 नंबर कंट्रोलर हम बोल रहे हैं। और ये 9, ये देखो, ये एनीमोमीटर है, ये 9 नंबर है, ये एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज अ instrument which measures the speed of the wind, which measures and direction of the speed of the wind. So wind का speed और direction सब इसमें measure हो जाएगा। और ये anemometer signal, वो measured value will be sent to the controller. Anemometer measured signal will be sent to the controller. और ये 10 है wind vane, 10 विंड वेन, मतलब ये विंड वेन कौन सा, वो विंड का डायरेक्शन के लिए, और ये एनीमोमीटर स्पीड के लिए, और ये विंड वेन है। ये दोनों का सिग्नल कहाँ होगा, हमको ये कंट्रोलर को भेज देगा, एनीमोमीटर को स्पीड कंट्रोल और विंड वेन को विंड डायरेक्शन कंट्रोल, दोनों ये कंट्रोलर को जाएगा। और ये 13 नंबर देखो, 13 ये 13 नंबर देखो, 13 है ये यार्ड ड्राइव, यार्ड ड्राइव। यार्ड ड्राइव क्यों से, टरबाइन को, ये देखो, सुन रहा है ना, सुन रहा है या नहीं? यस मैम, यस यस। और ये टरबाइन देखो, ये टरबाइन ये इधर ये ब्लेड से ऐसे रोटेट हो जाएगा है ना, ये डायरेक्शन में। और ये बोले, ये कंप्लीट ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम कंप्लीट, ये सिस्टम का नासल बोलेगा,
कंप्लीट नासल, नासल का फ्रंट में ये हब है, टरबाइन हब है, टरबाइन हब में ब्लेड्स है और ये रोटेट हो जाएगा। और ये है ना, ये भी रोटेट हो जाएगा ये से विंड डायरेक्शन के तरफ क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा यही से। और ये रोटेशन के लिए, इसका रोटेशन कंट्रोल के लिए, टरबाइन को रोटेशन कंट्रोल के लिए ये है या ड्राइव है 13 नंबर, या ड्राइव और या मोटर है। 14 नंबर है या मोटर और 13 नंबर है या ड्राइवर और 15 नंबर है टावर, नंबर टावर। सो ये है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टरबाइन। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखो, इधर इसके बाद ज्यादा डायग्राम हम ऐड किया, सो क्यों से तुमको कुछ आइडिया मिल जाएगा क्या क्या है, कैसा है उसमें से। तो हम स्टार्टिंग से बोला है ना क्या क्या है, और फर्स्ट वन क्या, फाउंडेशन है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड को कनेक्टिंग पार्ट है, और ये टावर है। सो ऊपर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जनरेट है, बाद जनरेटर से नीचे कनेक्शन होना चाहिए ना, और ये है केबल, और ये विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल। विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल में क्या क्या है, या ड्राइव एंड या मोटर है, ये याद रखो। फिर इसके बाद हम कुछ स्लाइड में हम बोला ये विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल, विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल में क्या क्या है, या मोटर एंड या ड्राइव दोनों है। ये टरबाइन को रोटेशन के लिए ये पोजीशन या दूसरा वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा, ये 60 डिग्री यही से, और ये 360 डिग्री यही से रोटेट हो जाएगा। और 6 नंबर है नासल, ये पूरा सिस्टम का नाम है नासल, और 7 जनरेटर है, और 8 एनीमोमीटर एंड विंड वेन है, और 9 ब्रेक, 10 गियर बॉक्स एंड 11 रोटर ब्लेड, 11 है रोटर ब्लेड एंड 12 है पिच कंट्रोल। बोला है ना, ये ओनली ये ब्लेड को रोटेशन के लिए, ब्लेड को रोटेशन के लिए, और 13 है रोटर हब, नहीं तो टरबाइन हब बोलेगा। ये है टरबाइन का फेस, टरबाइन हब। देखो ये रोटर, ये टरबाइन का ब्लेड इंडिविजुअली 360 डिग्री रोटेट है, ओके, ये रोटेट हो जाएगा। और ये दोनों ब्लेड सेंटर ये क्या करेगा, ये 360 डिग्री यही से रोटेट हो जाएगा। और ये नासल क्या, ये भी ऐसे डायरेक्शन को रोटेट हो जाएगा, ओके। ये है रोटर का हब है, रोटर हब में ये कनेक्टेड है। सो ये रोटेशन, ये ब्लेड को रोटेशन को कंट्रोल करेगा। और ये सिस्टम लो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स के बाद हमको हाई स्पीड शाफ्ट, ये हाई स्पीड शाफ्ट किसमें कनेक्टेड है, जनरेटर में कनेक्टेड है, ओके। सेम है। देखो इसमें, देखो इसमें कुछ ये हम बोला, ये पिच, ये रोटर ब्लेड क्या करेगा, ये रोटेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। और ये ब्रेक सिस्टम है, ये लो स्पीड, और ये गियर बॉक्स कनेक्टेड टू अनदर गियर सिस्टम and that connected to the high speed shaft and high speed shaft connected to the generator. जनरेटर के पास में कंट्रोलर है, so कंट्रोलर कनेक्टेड टू एनीमोमीटर एंड विंड वेन। ये नीचे डिस्क है ना, ये डिस्क कनेक्टेड टू या ड्राइव, या ड्राइव मतलब या मोटर, या ड्राइव एंड या मोटर, ये है विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल है। हाँ, ये सभी डायग्राम्स उसका इंटरनल कैसे होगा, ये इससे इंटरनली, ओके। ये देखो, ये है जनरेटर, और ये है जनरेटर का एरिया है, और ये कंट्रोलर का एरिया है। और ये गियर सिस्टम, देखो गियर सिस्टम है ना, ये गियर सिस्टम है,
लो स्पीड शाफ्ट टू हाई स्पीड शाफ्ट को कन्वर्ट करेगा। ओके, और इधर मैम है इसमें ये ऐसा क्या होता है मैम जो हाई स्पीड हो जाती है इससे गियर से मैम? जनरेटर को, नॉर्मली जनरेटर को शाफ्ट स्पीड क्या होगा, रोटर इनपुट मैकेनिकल इनपुट क्या होगा, 1300 आरपीएम होगा है ना मिनिमम। टर्बाइन का ब्लेड ओनली 50 या 60 आरपीएम के रोटेट हो जाएगा। ओनली 50-60 रोटेशन में हमको हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हाई होगा, तो हाई स्पीड चाहिए। इसीलिए गियर सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो गियर सिस्टम क्या करेगा, लो स्पीड टू हाई स्पीड को कन्वर्ट करेगा। रोटर रोटेशन, low speed rotor rotation is converted into high speed rotor rotation with the help of gear system, gearbox. Okay. तो ये सब उसका अंदर क्या क्या होगा, कैसे होगा, सभी इसका डायग्राम्स है इसमें। तो अभी हम बोला ना क्या क्या बोला, सेम है। तो रोटर इसमें 3 ब्लेड होगा या 2 ब्लेड होगा, वो रोटर सिस्टम में। सो ट्रांसमिशन सिस्टम या जनरेटर टू पावर प्रोड्यूस्ड, वो क्या क्या ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, गियर बॉक्स है, ब्रेकिंग सिस्टम है, सो एक्सिलरी लुब्रिकेटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, सभी इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है। जनरेटर में प्रोड्यूस होगा या कंट्रोल, नेक्स्ट वन मोर टाइम बोल रहे हैं, या कंट्रोल में या ड्राइव एंड या मोटर दोनों है, या कंट्रोल में या ड्राइव या मोटर दोनों है, या मोटर या ड्राइव को कंट्रोल करेगा, देन वो ड्राइव